कृष्ण कहते हैं यद्भूतं हितम उत्तमम, यद्भूत यद्भूतं हितम उत्तमम एतत् सत्यम मतम मम। तो वो कहते हैं कि जो पूरे प्राणी मात्र के लिए उचित है वही सत्य है। तो कृष्ण ने जो क्या किया था कि उन्होंने दोनों चीजों का, धर्म युद्ध और उसका उल्टा होता है कूट युद्ध, उन दोनों का एक मिश्रण किया और उन्होंने बोला कि जो है हमें जो है अपना रिजल्ट पाना है, विजय पाना ही हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए अगर बीच बीच में हम कूट युद्ध का प्रयोग करें, हम जैसे कि जो जो पैक्ट था उनके बीच में, कौरव पांडवों के बीच में, उसको कभी कभी हम ब्रेक करते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो है वो द्रोणाचार्य को मारा या भीष्म पितामह को मारा उन्होंने, तो वो धर्म युद्ध की पैरामीटर्स में नहीं आता था। फिर भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो एग्रीड अपॉन नहीं थे उस पे जो है उन्होंने उनको उनको जो है वो मारा। तो ये जब ये महाभारत में था ये, लेकिन हम जब मिडिवल इरा में आए तो हम धर्म युद्ध तो हमने किया हमने, लेकिन जो वो कूट युद्ध वाला जो जो फैक्टर था वो हम भूल गए। तो हम सिर्फ जो है वो हम उसी में लगे रहते थे कि हम जो है कि मॉरल हाई ग्राउंड रहे हमारा, कि हम बड़े नीति से लड़े, हम बड़े शालीनता से लड़े। वो यही हमारी हार का कारण बना एक्चुअली। Please don't forget to like, comment, and subscribe. Namaste. I, Mithilesh and Sumit, welcome you all to a new episode of the Eastern Report. नमस्कार। Today, we have noted authors Sri Amit Agrawal and Shruti Hajnis Gupte. Today, we'll discuss parallels between medieval battles and Great War of Mahabharata when India came into foreign subjugation. Welcome, Amit and Shruti. थैंक यू। Till 700 CE, in ancient India, its citizens were basking through the golden period, making stupendous progress in science, astronomy, literature, and architecture, with the whole world looking up to India. It was cradle of human race. Then Mayhem began, first by Arabs and then Turks invaded. After that, Afghans came, then some others. There was virtually a stampede to have their pie of India. The attack that changed the trajectory of a country, India got reduced to a vassal state in no time. Amit Agrawal explores this in his book, Swift Horses, Sharp Swords. Amit Agrawal is an engineer from IIT Roorkee, currently working in a prestigious Maharatna IL PhD. The Great War of Mahabharata has shaped Indian consciousness, civilization, and is the reason behind our survivals for thousands of years. However, we hardly know that this battle was influenced and driven by 5 women, Satyavati, Kunti, Gandhari, Draupadi, and Rukmini. Shruti Gupta explores this unexplored aspect of Mahabharata. Shruti Hajirnis Gupta is a chartered accountant by a profession, a Bharatnatyam dancer by passion, and an avid reader and writer. So we'll begin here. So first, I would like to show the wonderful book. So here is the Swift Horses and Sharp Swords. This book describes the medieval battles that India has witnessed, and through it, it came into foreign subjugation and slavery. So you can buy this book through Amazon. It's a wonderful read. And here comes the another book, Mahabharati. The author Shruti Hajnis. This book explored the unexplored aspect where 5 women were the key elements behind the Great War of Mahabharata that has never been told. So in front of me, I have the original Mahabharata by Ved Vyas, released by Gita Press, and I'm trying to read this book from last 2 years, and only 1/3 I have completed. So it's so vast, but it's wonderful to read this book, and you can have a gist of entire Mahabharata in this small book. So let's begin. So the question is, what is the difference between Mahabharata war and medieval times war? I'll start with Mahabharat because it belongs to प्राचीन इतिहास। हम उसको महाभारत हमारे
संस्कृति में इतना मिलजुल गया है कि हम उसकी स्टोरीज भी सुनते हैं और वो अपना कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि वो अपना प्राचीन इतिहास है। तो महाभारत युद्ध जो हुआ उसको धर्म युद्ध बोलते हैं, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ उसके पहले कौरव और पांडवों दोनों बाजू से कृष्ण और भीष्म ने मिलके वहां पे कुछ नियम अधोरेखित किए थे कि इन नियमों का पालन किया जाएगा। इसके लिए उसको धर्म युद्ध कहते हैं कि धर्म और ये एक एस्पेक्ट हुआ। और दूसरा एस्पेक्ट है कि पांडवों के ऊपर जो अन्याय हुआ था वो उसके लिए जो युद्ध किया गया वो कुरुक्षेत्र युद्ध, इसके लिए भी उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। एंड we see that like every story ends, कुरुक्षेत्र युद्ध में भी पांडवों का विजय हुआ था और ये विजय हमें ये सिखाता है कि हर बार सत्य की जीत होती है, हर बार अच्छे की जीत होती है बुराई के ऊपर। और लेकिन ये जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है, ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, वहां पे बहुत सारे पहलू है। किस तरह ये युद्ध खेला गया, किस तरह डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज किए गए। हम जानते हैं कि कृष्ण पांडवों के बाजू में था, लेकिन उसने ये बोला था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और वो पूरे युद्ध में सिर्फ सारथी का काम कर रहा था। लेकिन ऐसे देखा जाए तो श्री कृष्ण वाकई वो युद्ध के सारथी थे जिन्होंने who has driven entire force of कुरुक्षेत्र वॉर। और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करके अनेक घटनाओं से परिपूर्ण ऐसे वो युद्ध था। और जिसे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें जीवन के सब पहलुओं का पूरा विचार करके वो अपने जीवन को एक युद्ध की तरह देख के हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हमें ये सिर्फ एक छोटी सी युद्ध की एक कथा नहीं है जो लेकिन इसमें बहुत सारे पहलू है जो हमें आज के जीवन में भी अपने जीवन में सफल कैसे होना है ये सिखाते हैं। थैंक यू श्रुति। एक्चुअली जो श्रुति ने बोला कि हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि किसी भी लड़ाई में जो है अच्छाई की विजय होती है और बुराई का नाश होता है। तो ये अंतर जो है ये जब तक हम कुरुक्षेत्र में थे या जब हम इंटरनली लड़ रहे थे तब तक ये बात वैलिड थी। लेकिन जब इस्लाम आया, इस्लामिक इन्वेडर्स आए 7th सेंचुरी के बाद, स्पेशली जब 10th सेंचुरी के बाद जब टर्क्स आने शुरू हुए सेंट्रल एशिया से, तब ये फिलॉसफी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तभी वो लोग जो है महमूद गजनवी आए, वो 25 बार जो है वो आके 25 साल में 17 बार आके उन्होंने अटैक किया और सारा खजाना हमसे लूट के चले गए। फिर 1192 में मोहम्मद गौरी आए और उसके बाद जो है उन्होंने भी परास्त किया पृथ्वीराज चौहान को। तो हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है इन सब मैटर्स में, इन सब वॉर्स में अच्छाई और बुराई की का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया था। बाय द टाइम मिडिवल वॉर हैज कम, मिडिवल एरा हैज कम, उस समय सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी कि आपकी मिलिट्री का फॉर्मेशन क्या है, आपकी मिलिट्री की स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी मिलिट्री टैक्टिक्स क्या है और क्या आपका आर्मी का फॉर्मेशन है। तो ये जो 4 चीजें थी ये मैटर करती थी मिडिवल वॉर में और आजकल भी यही मैटर करती हैं। तो अच्छाई और बुराई जो है वो बड़ी रिलेटिव चीज है आजकल के जमाने में। एंशियंट टाइम्स में थोड़ा सा ये कम वो था, लेकिन अभी आजकल हम बता नहीं सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सबके अपने अपने ट्रुथ्स होते हैं, सबके अपने अपने सत्य हैं। तो उसमें हमें ये निष्कर्ष निकालना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है वो बहुत ही मुश्किल है। तो अभी जो हमने अपने इतिहास में देखा कि जो जीता वही सिकंदर। तो जो जीत गया उसी का हिस्ट्री है, उसी का इतिहास है, उसी ने सब कुछ माना जाता है, उसको सच माना जाता है उसको। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, चाहे हम जितने भी अच्छे थे, हमने कितनी प्रोग्रेस करी हमने गुप्ता पीरियड में, मौर्य पीरियड में, लेकिन उसके बाद जब हम 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के बाद हमारा जो हम हर चीज में हमने विकास किया, हम हर चीज में बेस्ट थे वर्ल्ड में। जैसे कि मैंने हमेशा कहता हुआ आया हूँ बाकी अपने बुक टॉक्स में भी, उस टाइम तक 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी तक हम 25% GDP प्रोड्यूस कर रहे थे पूरे वर्ल्ड का, इंक्लूडिंग यूरोप।
जो आज अमेरिका कर रहा है उससे हम डबल प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम पे। इवन चाइना भी हमसे पीछे था, लेकिन हमने जो है मिलिट्री या आर्मी में हम बहुत पीछे छूट गए। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमसे जो है ये लैग कर रहा है और ये हम इतने रिच हैं, लेकिन ये खजाना खुला पड़ा हुआ था। तो इसका लाभ जो है वो टर्क्स ने उठाया और 800 साल तक हम पे राज किया उन्होंने, 600 साल तक टर्क्स ने और फिर 200 साल तक यूरोपियन ने। अमित जी ने एक बात बताई कि 17 बार हमारे ऊपर सवारी हुई थी। तो अगर महाभारत के कालखंड में देखा जाए तो इससे जुड़ी हुई भी बहुत एक महत्वपूर्ण घटना है जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब कृष्ण छोटा था और वो मथुरा में रहता था तो कृष्ण यादवों पर भी जरासंध ने 17 बार सवारी की थी और वो वहां पे 17 बार सवारी होने के बाद 18वें बार कृष्ण पूरा मथुरा छोड़ के भाग गया था और उसने नई द्वारका बनाई और तब से लेके महाभारत के युद्ध तक की जहाँ पे पूरा भारतवर्ष एक दूसरे के सामने खड़ा था कौरव पांडवों की सेना में, वो जो संगठन जो किया है कृष्ण ने, वो भी जो अमित जी बोले कि मिलिट्री फॉर्मेशन, आर्म फोर्सेस, ये सब भी महाभारत के युद्ध में ये जरासंध की सवारी महाभारत की बैकग्राउंड है, बैकड्रॉप स्टोरी है। तो वो स्टोरी से लेके एक्चुअल महाभारत युद्ध तक जैसे पूरी पांडवों ने तैयारी की थी, ये सब देखने जैसा है। और ये महाभारत और ये मिडिवल टाइम में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो महाभारत के टाइम में पांडवों के विरुद्ध कौरव खड़े थे, लेकिन पांडवों के पास कम सेना थी, उनके पास सिर्फ 7 औक्षहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 औक्षहिणी सेना थी। और वैसे देखा जाए तो पांडव तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करके युद्ध में खड़े थे, तो उनके पास वैसे भी बल कम था। पर किस तरह उन्होंने पूरा फॉर्मेशन किया, किस तरह 7 औक्षहिणी सेना उनके साथ खड़ी की, जिसमें कृष्ण का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे उनके पास जैसे अमित जी ने बोला कि जब मिडिवल टाइम में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हमारे पास तो सब कुछ था, लेकिन महाभारत में तो पांडवों के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने शून्य से लेके पूरा फॉर्मेशन किया और जीत हासिल की। आई थिंक ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सीखने जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू। So moving ahead, so what is the role of women in a war if we compare Mahabharata and medieval times? मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि मेरा बुक ही विमेन पर्सपेक्टिव से है। तो अमित जी मैं शुरुआत करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो महाभारत में वैसे हमने देखा जाए तो महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना है कि द्रौपदी वस्त्रहरण, और वस्त्रहरण के बाद द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेरे बाल खुले छोड़ूंगी और मैं उसको बांधूंगी नहीं। तो तो वो जो प्रतिज्ञा थी वो तो एक वो पूरा प्रसंग ये एक चिंगारी था जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के अग्नि में बदल गया। तो महाभारत युद्ध का एक बहुत सारे कारण है, बट जो बहुत महत्वपूर्ण कारण जो समझा जाता है वो स्त्री से शुरू होता है कि द्रौपदी का अपमान और उसका वस्त्रहरण। तो ये युद्ध की शुरुआत है। और वैसे देखा जाए तो युद्ध भूमि में महाभारत के युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में महिलाओं ने युद्ध नहीं खेला था, किंतु उनका जो योगदान था, दे डिडंट फाइट फिजिकली बट दे फॉट मेंटल वॉर, बिकॉज all of their kinsmen were fighting against each other। और उनका जो रोल था कुछ व्यक्तित्वों का वो बहुत स्ट्रेटेजिक था। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण कौरव सेनाओं के बहुत महत्वपूर्ण योद्धा मानने में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जैसे कि कर्ण के लिए हमने ये स्टोरी सुनी है कि कुंती कर्ण के पास जाती है और उसको बताती है कि तू मेरा बेटा है, और उसके बाद फिर वो उससे वचन भी मांग लेती है कि कर्ण उसको वचन देता है कि तुम्हारे पांडव रहेंगे, पांडव जीवित रहेंगे, तो तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, मैं बाकी चारों को नहीं मारूंगा। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन चारों को मैं नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूंगा। तो ये जो वचन कुंती ने कर्ण से लिया वो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्ण बहुत आसानी से इन चारों पांडवों को मृत्युदंड दे सकता था युद्ध में। वो उतना ही वॉज वेरी कॉम्पिटेंट। तो और बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसा होता भी है कि युधिष्ठिर और कर्ण एक दूसरे के सामने आते हैं और कर्ण उनको पूरी तरह से पराजित कर देता है। तो ये घटना को देख के हमें पता चलता है कि वो जो वचन कुंती ने लिया था कर्ण से वो कितना महत्वपूर्ण था। उससे पांडवों का आधी जीत हासिल हो गई, क्योंकि अगर कर्ण किसी भी और पांडव के सामने आ जाता था तो उसे वो मार देता था, और सिर्फ अर्जुन के साथ कृष्ण थे तो सिर्फ अर्जुन को ही उसको मारना मुमकिन था। तो ये कुंती का बहुत बड़ा त्याग है, अपने ही बेटे को बोलना कि तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरे बाकी पुत्रों को मत मारो। इसका मतलब है कि कुंती को पता था कि मुझे पांडवों के लिए कर्ण का योगदान देना पड़ेगा। तो ये एज अ मदर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कुंती टू डू दैट एक्ट ऑफ गोइंग अहेड एंड टेलिंग Karna that you are my son, but she does that, and it was a strategic decision and it has a strategic importance. एक दूसरी भी एक घटना है कि भीष्म को मारने में स्त्री व्यक्ति रेखाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम शिखंडी की कथा सुनते हैं, हम सब जानते हैं कि शिखंडी ने अर्जुन के साथ मिलके भीष्म का पतन किया था, लेकिन उसके पहले ऐसे एक पहली वाली एक छोटी सी घटना है जो मैं आपको बताऊंगी कि वो जो युद्ध का दिन आता है उसके पहले रात को दुर्योधन भीष्म के पास जाता है और उनको बोलता है कि नहीं तुम मेरे बाजू से लड़ रहे हो, बट तुम्हारा पूरा प्यार सिर्फ पांडवों की तरफ है, इसके लिए तुम उनको मार नहीं रहे हो। तो भीष्म प्रतिज्ञा कर देते हैं कि हाँ, कल मैं किसी एक पांडव को तो जरूर मारूंगा। और उसके बाद फिर सब अगर भीष्म, हम सबको पता है कि भीष्म प्रतिज्ञा का इम्पोर्टेंस क्या है। भीष्म एक बार उन्होंने लाइफ में जो भी एक बार प्रतिज्ञा कर ली वो उसको प्रतिज्ञा को हर तरह निभाते रहे। तो दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ऐसे अंधेरे के टाइम में वो टाइम में द्रौपदी भीष्म के कुटीर में जाती है। वो सिर्फ अपने कंगन की आवाज करती है और उनके पैर छू लेती है। तो भीष्म कंगन की आवाज से भीष्म को ये तो पता चल जाता है कि कोई एक सुहागन औरत पैर छूने के लिए आई है। तो वो उसको आशीर्वाद देता है, सौभाग्यवती भव। और फिर द्रौपदी पूछती है उनको कि पितामह, आपने जो कल रात को प्रतिज्ञा की वो सच है या आज आपने जो मुझे वरदान दिया वो सच है? और फिर भीष्म उसको बताते हैं कि किस तरह से भीष्म का पतन किया जा सकता है, और भीष्म खुद बताते हैं कि तुम युद्ध में शिखंडी को लाओ। तो इस तरह द्रौपदी का रोल भी महत्वपूर्ण है भीष्म पतन के लिए। तो ऐसे महाभारत के टाइम में स्त्री व्यक्ति रेखाओं ने भी महत्वपूर्ण रोल किया है। और हम सभी जानते हैं कि महाभारत में महर्षि व्यास ने भीष्म पर्व से लेकर सौकिका पर्व तक पूरा युद्ध का डिस्क्रिप्शन किया है। ऑल दीज चैप्टर्स आर डेडिकेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर। लेकिन उसके बाद का जो चैप्टर आता है वो आता है स्त्री पर्व, और वो स्त्री पर्व में
महर्षि व्यास ने स्त्री व्यक्ति रेखाओं को आवाज दी है। और हम बोलते हैं कि युद्ध की वास्तविकता किसी को पूछनी है तो उस स्त्री से पूछे जिसका पति या पिता या बंधु या पुत्र मारा गया हो। तो उसमें वो स्त्री पर्व में गांधारी का अवतरण है और वो हमें युद्ध की सच्चाई, युद्ध की भीषणता, युद्ध की वास्तविकता बताती है। तो महाभारत का युद्ध भले ही स्त्री व्यक्ति रेखाओं ने ना लड़ा हो, किंतु उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो स्त्री से शुरू होता है, द्रौपदी वस्त्रहरण की से, और स्त्री तक समाप्त होता है, स्त्री पर्व से तक वो समाप्त होता है। तो इस तरह मैं मानती हूँ कि स्त्री व्यक्ति रेखाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू श्रुति, आपने अच्छा बोला। आपने हमारे देश में, भारत में हमेशा से ही वुमेन का रोल जो है बहुत ही एडवांस रहा है, बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा है। महाभारत टाइम में भी जैसे श्रुति ने बोला कि जो इनफैक्ट जो वुमेन थी, दे वर मोर पावरफुल देन द मैन एंड दे हैव डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ द एक्शन, कोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वॉर, कि कैसे वॉर होगा या नहीं होगा। तो वो ये जो 4 प्रमुख नारियां थी, द्रौपदी, कुंती, गांधारी एंड सत्यवती, इन चारों ने जो है, इनकी चारों की, ये आप कह सकते हैं कि इनकी वजह से युद्ध हुआ। और कैसे युद्ध हुआ ये सब जो है इन्हीं की बेसिकली बैकग्राउंड में यही लोग थे ये। सिमिलरली लेकिन इसमें आई थिंक वॉर में इन लोगों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, ये हमेशा बैकग्राउंड में रहे। शाम को जब कैंप में जो है, जैसे ये हम उस समय धर्मयुद्ध था या रूल था, उस समय जब कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध शुरू होने के पहले एक पैक्ट हुआ था कि शाम को जो है एक दूसरे के कैंप में जाएंगे और उनका हालचाल पूछेंगे, कोई मर गया तो उसके शोक जो है वो प्रकट करेंगे। और जो है वो जो नारियां हैं वो जाके जो है वो दवाइयां या फूड जो है वो खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो सैनिक जो है जो इंजर्ड हो गए हैं। तो ये सब जो है वहां पे उस समय हुआ है। मिडिवल वॉर में जब हम आए उस टाइम तक, आते आते जो है एटलीस्ट टिल 11th-12th सेंचुरी जो वुमेन का पोजीशन तब भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट उस टाइम पे जो है बहुत सारी जो क्वींस थी उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया वॉर में। तो एक जो सबसे अच्छा उदाहरण है जो मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है वो है नाइकी देवी का, जिन्होंने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया। माउंट आबू के पास एक जगह है, वहां पे उनका युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के साथ, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी की सेना बहुत ही, जैसे आपको पता है कि कैवलरी थी उनकी, बहुत फास्ट मोबिलाइज्ड कैवलरी थी, उनके घोड़े बहुत अच्छे थे। फिर भी नाइकी देवी ने एक ऐसा टेरेन चूज किया पहाड़ी वाला, जो आपने को पता होगा कि माउंट आबू जो है वो पहाड़ पे है, तो वो उन्होंने पहाड़ पे चूज किया कि हम यहाँ पे युद्ध लड़ेंगे। जहां पे उनकी कैवलरी जो थी, टर्किश कैवलरी थी, वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई। वो उनकी स्ट्रेंथ इनफैक्ट वो वीकनेस बन गई, क्योंकि वो उनके घोड़े चल ही नहीं पा रहे थे, वो पतले उस पे पतले पहाड़ों पे जो रास्ते थे उस पे। तो जो स्ट्रेटेजी जो थी ये उनकी काम आई, उन्होंने बताया कि कैसे हम उसको हरा सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी वही गलती करी जो बाकी लोगों ने गलती करी, कि मोहम्मद गौरी इंजर्ड हो गया था और उसको फिर जो है मार सकती थी वो, लेकिन उसको उन्होंने जाने दिया। तो वो चला गया वो सिंध में, वहां पर जाके उसने रिक्यूपरेट किया, उसने वो जो इंजरी थी वो ठीक हुई, और फिर 2-3 साल बाद उसने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसने धीरे धीरे करके पूरा पंजाब, सिंध सब पे कब्जा कर लिया। फिर 1191 में तराइन में वो उसकी लड़ाई भी, वो उसकी वो अलग आगे की वो है। तो ये कि नाइकी देवी है जिनके नेतृत्व में जो है वो युद्ध हुआ। फिर 13th सेंचुरी में एक कश्मीरी क्वीन थी, कोटा रानी, उन्होंने भी जो है वो जो टर्क्स थे उनको, उनके खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने कश्मीर को बचा के रखा कम से कम 20-25 सालों तक। हालांकि उसके बाद जो है वो नहीं कर पाए वो ज्यादा, क्योंकि उनके अगेंस्ट में पूरा जो कश्मीर का समाज था वो कन्वर्ट हो गया था धीरे धीरे इस्लाम में। बहुत कम वहां पे हिंदू बचे थे उस समय, लेकिन उन्हें अंत समय तक जो है वो उसको राज नहीं करने दिया मुसलमानों को। मुसलमान इन्वेडर्स जो थे, टर्किश इन्वेडर्स जो थे, उनको नहीं करने दिया। तो और फिर जाके हम अगर आगे भी देखें तो जब मुगलों का शासन आया, ये जब दिल्ली सल्तनत आई, तब हिंदू वुमेन की पोजीशन थोड़ी खराब हो गई। उनको घूंघट में, उनको पर्दे में रखा गया, उनको घर में रखा गया ताकि उनका कोई शोषण ना हो। जो भी हिंदू जो रिच ट्रेडर्स थे या जो रॉयल थे, वो सब जो है वो
पलायन कर गए गाँव में या कहीं दूर जहाँ पे इस्लामिक राज्य नहीं था वहाँ पे। फिर भी 17th-18th सेंचुरी तक जो हम देखेंगे कि अहिल्याबाई जैसे थी, उन्होंने भी जो है वो अपने अपने पैसों से बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, उनको रिपेयर करवाया। एलोरा की केव थी, काशी विश्वनाथ मंदिर था काशी में, वो सबको जो है वो उन्होंने करवाया। तो वुमेन की पोजीशन मेरे हिसाब से जो है वो हमेशा से ही बड़ी प्रोग्रेसिव रही है। इनफैक्ट मे बी वर्ल्ड में हम देखें, अगर कंपेयर करें बाकी कंट्री से, तो वो वन ऑफ द बेस्ट है वो। तो महाभारत टाइम में भी और मिडिवल इरा में भी, एक्सेप्ट जो 200-300 साल में जब मुगल जब पीक पे थे या दिल्ली सल्तनत जब पीक पे थी, उस टाइम को छोड़ के अदरवाइज हमेशा उन्होंने लीडरशिप प्रदान करी है। उन्होंने, उनका जो नर्चरर का रोल था, उनका जो सोसाइटी को आगे ले जाने वाला रोल था, वो उन्होंने जो है वो हमेशा उसको किया। इनफैक्ट अभी मुझे एक कहानी भी याद आ रही है कि पृथ्वीराज चौहान और जो संयोगिता की थी, जब उन्होंने जब भाग के जब शादी करी उन्होंने, तो संयोगिता ने उनको पृथ्वीराज चौहान को बोला कि भाई आपके अंदर जो है क्या खून खत्म हो गया है, जो आप लड़ना नहीं चाह रहे हो मोहम्मद गौरी से, जो कि पिछले 2 महीने से आके तराइन में बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो उससे, जहाँ पे उसके अत्याचार चल रहे हैं वहाँ पे पंजाब सूबे में जो है। तो इस तरीके से भारतीय महिलाओं ने हमेशा से जो है वो इतिहास में अपना योगदान दिया है, वो कभी पीछे नहीं हटी। Yeah, so adding to that, so this question is related to promises and vows, right? So Mahabharata is all about promises, like Bhisma Pratigya, and they have made rules, and based on that they fought. तो बट ऐसा मतलब जैसे आपने भी जिक्र किया कि मेडिवल टाइम आते आते जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, उनका जो सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट था वो था कि डिसीव करना, कि वो कभी भी अटैक करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं, धोखा देना, और आपके आपके ही लोगों को खरीद के जैसे भी मतलब इस तरह से उन्होंने वार को जीता। तो आपको क्या लगता है कि अगर महाभारत और मिडवल वार को कंपेयर करें, तो ये जो प्रोमिसेस है, जो जो प्रतिज्ञा है, कितना रोल प्ले किया? मैं इससे शुरुआत करूंगी। मैं एक सौप्ती का पर्व का एक प्रसंग है, मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ कि सौप्ती का पर्व में आपको पता है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है और उसकी वजह से उत्तरा के कोख में जो गर्भ था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सब कृष्ण के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ही कुछ कर सकते हो। तो कृष्ण अपनी शक्ति से वो गर्भ में चेतना ला देता है। तो वो घटना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि महाभारत का पूरा सार और कृष्ण के पूरे जीवन के का पूरा सार वो एक घटना में है, क्योंकि कृष्ण कहता है कि अगर मैंने अपने जीवन में कोई झूठ ना बोला हो, कोई असत्य ना कहा हो और कोई अनुचित ना किया हो, तो उत्तरा के गर्भ में चेतना आ जाएगी, और वो आ जाती है। और हमें सबको पता है कि ऐसे ऐसे है कि कृष्ण ने कभी असत्य नहीं बोला। हमें सबको पता है कि कृष्ण ने एक भी संधि नहीं छोड़ी जहाँ पे वो असत्य ना बोले। बल्कि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये भी देखते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज से भी उन्होंने उनको झूठ बोलने को बोला था। उन्होंने उनको, लेकिन हम वैसे सूक्ष्म तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये नहीं कहा था उनको कि झूठ बोलो। वो बोले थे जब आपको पूछेंगे तो आप बोलो नरोवा कुंजरोवा, ठीक है, और फिर कुछ अनुचित ना किया हो। ऐसे हमें कितनी बार पता है कि कृष्ण पूरा रण छोड़ के भाग गए थे, है ना। उनको तो इनफैक्ट रणछोड़ राय कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने लेकिन ये सब होने के बावजूद जब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने मेरे जीवन में कोई भी असत्य ना कहा हो और कोई भी अनुचित कार्य ना किया हो, तो उत्तरा के कोख में चेतना आ जाएगी, और वो आ जाती है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो किया वो सत्य था। तो इसके लिए हमें कृष्ण की सत्य की व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण की सत्य की व्याख्या क्या थी ये देखना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं यद भूतम हितम उत्तमम, यद भूतम हितम उत्तमम
एतत् सत्यम मतम मम। तो वो कहते हैं कि जो पूरे प्राणी मात्र के लिए उचित है वही सत्य है, और वो सत्य को प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने बनाई थी कुरुक्षेत्र के टाइम में। और फिर हम इस तरीके से देखते हैं तो जो प्रतिज्ञा थी, तो भीष्म का भी पतन होता है क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा तो की, लेकिन वो प्रतिज्ञा का स्थल, देश, काल, स्थल की ओर से उन्होंने चेंजेस नहीं किए, और फिर वो प्रतिज्ञा रिडंडेंट हो गई, इसके लिए भीष्म का पतन हो गया। तो महाभारत का युद्ध हमें ये नहीं सिखाता है कि तुम सिर्फ सीधे रास्ते से चलो, वो हमें ये भी सिखाता है कि तुम you look at greater purpose, and if you want to achieve that greater purpose, you have to find your ways and means, and then it doesn't matter whether these ways and means are within the parameters of society. Sometimes you have to diverse them to win the war for greater good. ये हमें कुरुक्षेत्र का युद्ध बताता है, ये हमें पांडवों की जीत बताती है, ये हमें सिखाता है, और कृष्ण का पूरा जीवन हमें ये सिखाता है। भारतीय परंपरा में कृष्ण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोलते हैं कि जिसको कृष्ण समझ में आया उसको जीवन का पूरा सार समझ में आया, क्योंकि कृष्ण ने सिर्फ मूल्य प्रस्थापित नहीं किया, लेकिन उसने अगर हमने कृष्ण के पूरे जीवन को देखा जाए तो उन्होंने मूल्य प्रस्थापित करने के लिए नए रास्तों को भी हमें बताया। हम कृष्ण नीति बोलते हैं, जो कूटनीति है, जो राजनीति है, जो हमें बताती है कि तुम सिर्फ शास्त्र की ओर मत चलो, तुम सब देश शास्त्र को या जो भी चीजें बताई गई है उसको पहले देश, स्थल, काल के हिसाब से उनको देखो, निरखो, परखो और फिर उनको अपनाओ, और अगर उसमें कुछ बदल करना पड़ेगा तो अवश्य करो, क्योंकि यही प्रगति का मार्ग है। ये हमें महाभारत का युद्ध सिखाता है। हम वैसे देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जो हम सब जानते हैं वो घटना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। जब अर्जुन तैयार नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए पहले दिन, तो उन्होंने गीता उनको बताई, और हम सब जानते हैं कि भगवत गीता पूरे वेदों का सार है, और आज भी हम गीता के किसी भी श्लोक को लेके अपना जीवन व्यतीत करें तो हम अपने जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। आज तक वैसे देखा जाए तो भगवत गीता के लगभग 38 मीनिंग्स है, डिफरेंट मीनिंग्स है, जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फिट होते हैं। तो अगर ऐसा है तो महाभारत का युद्ध सिर्फ हमें ये नहीं बताता है कि तुम सीधा धर्म के शास्त्र के मार्गों पे चलो, वो हमें ये सिखाता है कि तुम धर्म का अर्थ है कि विकास, अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना, यही धर्म का अर्थ है। और अगर उसको वो पर्पस को तुम्हें पाना है तो तुम्हें श्री कृष्ण बन के अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, और ऐसी स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी जो पांडवों के साइड से कृष्ण ने इम्प्लीमेंट की थी, और फिर अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होगी। और मुझे लगता है कि शायद मिडिवल टाइम में आते ये जो इंट्रिंसिक मीनिंग है महाभारत का और कुरुक्षेत्र युद्ध का या फिर भगवत गीता का, ये कहीं पे हमने उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया, और इसके लिए हमारी हार हो गई। थैंक यू श्रुति। जो श्रुति का जो मैं समरी कहूंगा कि बेसिकली जो कृष्ण बोले कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, जो आपका रिजल्ट है वो आपके जो आपने जिस वे से आए हो उसको जस्टिफाई करता है। आप जीत गए तो आप ठीक है, आप हार गए तो आप गलत हैं। सीधे का मिडिवल वॉर में या अभी मॉडर्न टाइम्स में इसका मतलब ये है।
तो जैसा भी मैंने बोला था, जो जीता वही सिकंदर, तो वही है। तो कृष्ण ने जो क्या किया था कि उन्होंने दोनों चीजों का, धर्म युद्ध और उसका उल्टा होता है कूट युद्ध, उन दोनों का एक मिश्रण किया और उन्होंने बोला कि जो है हमें जो है अपना रिजल्ट पाना है, विजय पाना ही हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए अगर बीच बीच में हम कूट युद्ध का प्रयोग करें, हम जैसे कि जो जो पैक्ट था उनके बीच में, कौरव पांडवों के बीच में, उसको कभी कभी हम ब्रेक करते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो है वो द्रोणाचार्य को मारा या भीष्म पितामह को मारा उन्होंने, तो वो धर्म युद्ध की पैरामीटर्स में नहीं आता था। फिर भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो एग्रीड अपॉन नहीं थे उस पे जो है उन्होंने उनको उनको जो है वो मारा। तो ये जब ये महाभारत में था ये, लेकिन हम जब मिडिवल इरा में आए तो हम धर्म युद्ध तो हमने किया हमने, लेकिन जो वो कूट युद्ध वाला जो जो फैक्टर था वो हम भूल गए। तो हम सिर्फ जो है वो हम उसी में लगे रहते थे कि हम जो है कि मॉरल हाई ग्राउंड रहे हमारा, कि हम बड़े नीति से लड़े, हम बड़े शालीनता से लड़े। वो यही हमारी हार का कारण बना है एक्चुअली। जैसे जो हम महाभारत में था, सनसेट टू सनराइज टू सनसेट ही हम लड़ते थे हम, जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे ही लड़ाई बंद। मिडिवल एरा में जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए उनको कोई वो ये नहीं था कि हमें सूर्यास्त में खत्म करना है तो वो जब भी वो जीते तभी जो है वो लड़ाई खत्म होगी, वरना रात भर दिन भर चलती ही रहेगी। तो ये जो जो था ये हम भूल गए वहां पे। जितने भी मिडिवल वॉर्स हुए, जैसे सिंध में राजा दाहिर हुए, फिर मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, वो उन लोगों से हम जो है कभी हम जीत नहीं पाए, क्योंकि हमारा फोकस रहता था कि हम धर्म युद्ध पे करें, हम मॉरल हाई ग्राउंड रहें, और हमारे मन में हमेशा रहता था कि अच्छाई की जीत होगी। तो चाहे हमारी कैसी भी मिलिट्री रही हो, उनकी ट्रेनिंग रही हो या ना रही हो, हम बस लड़ने पहुंच जाते थे बिना किसी स्ट्रेटेजी के। हमारी कई बार सेना जो है उनसे 10 गुना ज्यादा होती थी हमारी। जैसे पृथ्वीराज चौहान की सेना करीब 5 लाख थी तराइन के युद्ध में, उसकी सिर्फ 50,000 थी, लेकिन 50,000 लोगों ने 5 लाख लोगों को हरा दिया। क्यों? क्योंकि जो उनके पास डिसिप्लिन था, उनके पास जो ट्रेनिंग थी, जो उनके पास घोड़े थे, वो सब हमारे पास नहीं थे। तो 1:10 का रेशियो होने के बाद भी जो है वो हम हार गए। तो इसका जो रीजन है वो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये क्यों ऐसा हुआ ये। तो अभी भी आप देखेंगे कि इसमें जो पिछले 1000 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आज भी वैसे ही चल रहा है। हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन है वो बहुत आर्काइक जिसको बोलते हैं वो है, जो मॉडर्न जिसपे यूरोपियन या अमेरिकन फोर्सेस लड़ती हैं वो हमारे पास अभी भी नहीं है। वो स्ट्रेटेजी, वो डिसिप्लिन, वो टैक्टिक्स जो है वो अभी भी एब्सेंट है हमारे पास। जो मिडिवल एरा में जो हमारे पास वेपन्स थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। जो हमारा जो धनुष बाण थे वो बहुत भारी होते थे, वो लकड़ी के बने होते थे, जबकि जो टर्किश के जो होते थे वो एनिमल्स की जो मसल्स होती थी उससे बने होते थे। तो वो बहुत लाइट वेट होते थे और बहुत पावरफुल होते थे। तो वो 100 मीटर की दूरी पर भी जाते थे। वो कोई एक जो हमारा राजा हाथी पे बैठा हुआ है तो वो 100 मीटर दूर दूर से घोड़े पे आता था वो, और उसको हाथी के ऊपर जो है वो उनको मार देता था। उस तरीके के धनुष बाण हमारे पास नहीं थे, हमारे पास तो तलवारें नहीं थी हमारे पास, जबकि हम अच्छा स्टील प्रोड्यूस करते थे। हमने 17th-18th सेंचुरी तक बेस्ट स्टील प्रोड्यूस किया वर्ल्ड में, लेकिन हमारे वेपन समहाउ जो है वो वर्ल्ड क्लास नहीं थे, लड़ने लायक नहीं थे। जो हॉर्सेस के जो हॉर्स शू थे या हॉर्स सैडल थे, या जो हमारा कवच होता था वो बहुत भारी होता था, या उस कवच में एक तो भारी होता था और प्लस यहाँ की जो गर्मी होती थी उससे वो उनकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती थी। तो ये सब जो स्ट्रेटेजी थी ये सब फेल हो गई उनके सामने, मुगल्स के सामने, टर्किश के सामने। जबकि महाभारत के बारे में क्या था कि हमारी जो सब इन हाउस जो था वो बेसिकली एक सिविल वॉर टाइप की चीज थी। वो आपस में ही हम लोग लड़ रहे थे, तो जो ग्राउंड एडवांटेज है वो किसी के पास नहीं था वो। तो इस कारण जो है वो मिडिवल वॉर्स में हम अधिकतर हारे हम। किसी ने एक रात के युद्ध की घटना बताई कि मिडिवल टाइम में हम रिलक्टेंट थे। मैं इसी घटना को महाभारत के पर्सपेक्टिव से बताना चाहती हूँ कि वो जो नियम था वो महाभारत में भी भीष्म पतन के बाद बहुत सारे नियमों का पालन नहीं किया था। तो रात को कर्ण लड़ने को आया था और वो बहुत तेजी से लड़ रहा था। तो उस टाइम कृष्ण ने ये स्ट्रेटेजी यूज की थी कि उन्होंने भीम का पुत्र घटोत्कच को कर्ण के सामने लाया, और हमें पता है कि वो राक्षस जाति से था, तो राक्षसों का बल रात के टाइम में ज्यादा होता है, तो वो कौरव सेना पे पूरा भारी पड़ गया
और सब लोग कौरव की सेना के सारे योद्धा बोलने लगे, कर्ण कर्ण हमें बचाओ, हमें जीवन दान दो, इस घटोत्कच से हमें बचाओ। और फिर कर्ण ने उनके पास जो वैजयंती अस्त्र था उसका प्रयोग घटोत्कच पे कर दिया और उसका मृत्यु हो गया। हमें ये पता है कि वैजयंती अस्त्र जो था वो कर्ण के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसने वो वैजयंती अस्त्र अर्जुन के लिए बचा के रखा था, क्योंकि उसने जब कवच कुंडल का दान किया था तो इंद्र ने उसको ये वैजयंती अस्त्र दिया था। और अगर वो वैजयंती अस्त्र अर्जुन पे चला देता तो क्या हो जाता। लेकिन कृष्ण ने ये सारे युद्ध के नियम ये सब बाजू में रख के घटोत्कच को कर्ण के सामने लाया, ताकि वो वैजयंती अस्त्र जो कर्ण का है वो निष्प्रभ हो जाए, वो उसका प्रयोग कर दे और अर्जुन बच जाए। तो ये चीज सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब क्या कैसे करना चाहिए। सो अगला प्रश्न मेरा अमित अग्रवाल जी से रहेगा। तो जैसे जब मिडवल टाइम की बात होती है तो उस समय जो राजा थे उनका अपना एकाधिकार था, तो वो महाभारत को इतिहास मानते थे। अनलाइक टुडे जेरा हमें माइथोलॉजी पढ़ाया जाता है कि महाभारत इज माइथोलॉजी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो वो इतिहास मानते थे, उससे उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करते थे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो राजा थे, जो हमारे शासक थे उस समय की, उन्होंने कुछ सीखा था महाभारत से जब उनका फॉरेन इन्वेडर से सामना हुआ? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ ज्यादा वो सीखा। उन्होंने जो सीखा वो सीखा कि धर्मयुद्ध वाला जो उनके दिमाग में बैठ गया। तो वो, लेकिन जो दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो दूसरा फैक्टर था कूट युद्ध वाला, वो उन्होंने मिस कर दिया। वो उस पे जो है वो उसको कुछ अपनी लाइफ में या अपने वॉर्स में ला नहीं पाए। अभी जैसे हम देखते हैं कि महाभारत टाइम पे स्पाइस भी थे, जासूस थे, जबकि मिडिवल एरा में कोई जासूस ही नहीं था। जैसे कृष्ण थे तो उसके बाद जो है 300 BCE में चाणक्य आए। तो चाणक्य भी कृष्ण के मोल्ड में थे। उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। वो उन्होंने बताया कि कैसे हमें युद्ध से जीतना है, युद्ध में जीतना है, क्या क्या चीजें हम प्रयोग कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद चारों आपको यूज करना है और आपको युद्ध को जीतना है कैसे भी। तो उन्होंने हर मेथड एम्प्लॉय किया चाणक्य ने। तो वो भी जो है हम भूल गए। चाणक्य ने जैसे विष कन्याओं का प्रयोग किया अपने युद्ध में, तो जबकि जो मिडिवल एरा में उसके 1000 साल बाद जो है वो कहीं इसका जिक्र नहीं आता कि किसी राजा ने विष कन्याओं का यूज किया। या कभी भी चाणक्य बोलते थे कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आपको जो है युद्ध को एनिमी की टेरिटरी में लेके जाना है। तो वो भी हमने कभी नहीं किया। हमारी लड़ाइयां जो हुई वो पंजाब और हरियाणा के युद्ध क्षेत्र में हुई, चाहे वो पानीपत हो या तरायन हो, ये सब हरियाणा में है। तो हम उस समय तक आई थिंक बड़े लेजी हो गए थे कि हम सोचते थे, जो राजा थे वो सोचते थे कि भाई उनको आ जान दो हरियाणा तक, हम कौन दिल्ली से इतना दूर जाएगा, पाकिस्तान जो आजकल का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां हम क्यों लड़ने जाएंगे इतने दूर। तो इसलिए उनको आने दो, हम यहीं पे उनको हरा देंगे। तो इतना ज्यादा उनके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि यही उनको ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ले डूबा। तो इसीलिए जब इतना पास में रहते थे तो सारा जो है लूटपाट होती थी। जो हमारी राजधानी थी दिल्ली, या उससे पहले जो कन्नौज थी राजधानी उस टाइम पे, तो वो सबको लूट लिया गया, सारे मंदिरों को लूट लिया गया, सारे लोगों को लूट लिया गया, उनको दास दासी बना के वो गजनी ले गए, सेंट्रल एशिया में उनको भेज दिया गया, बुखारा में। तो कहने का मतलब ये है कि जो महाभारत टाइम की जो लर्निंग्स थी वो हम मिस कर गए उस समय, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो मिलिट्री मैटर्स में हो। जैसे कि अब जब महाभारत युद्ध में तैयारी हो रही थी तो सारे योद्धाओं ने तपस्या करी, देवी देवताओं से उन्होंने अस्त्र लिए। जैसे उन्होंने बोला कि श्रुति ने कि कर्ण ने कौन सा अस्त्र लिया, वैजयंती, है ना। उसको जब कवच कुंडल का दान किया तो इंद्र ने उसको बदले में वैजयंती दिया था। हाँ, तो वैजयंती अस्त्र दिया। तो सारे लोगों ने प्रिपरेशन करी उसकी कि युद्ध होने वाला है, कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग हुई। उन्होंने बिल्कुल जो जिसको बोलते हैं लेटेस्ट अस्त्र जो है उन्होंने एक्वायर किए। और बाकी सबसे कौरवों ने, पांडवों ने, जो उनकी सेना थी उसमें दूर दूर से लोग सबके पास गए, अपने मित्रों के पास में, अपने रिश्तेदारों के पास में, उनसे हेल्प मांगी, उनसे बोला कि आप हमारे साथ आके युद्ध करिए। तो ये जो दो चीजें थी ये भी मिडिवल एरा में नहीं हुई है। मध्यकालीन युग में कोई सब लोग अपने आप अकेले ही लड़ते रहे। जब पृथ्वीराज चौहान था तो वो अकेले लड़े, उनके पास एक दो जो मित्र थे वो आ गए,
बाकी जो है कोई भी आया नहीं उनके पास में। जो सेकंड वॉर था तरायण का, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में उनकी जो उन्होंने संयोगिता से विवाह कर लिया, तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे संयोगिता के पिताश्री जयचंद, तो उन्होंने जो है वो जिस तरीके से विवाह हुआ, गंधर्व विवाह हुआ पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता का, तो वो नाराज हो गए जयचंद। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान की उन्होंने हेल्प नहीं करी, वो अकेले पड़ गए और फिर आपको पता है कि क्या हुआ। और उसके 1-2 साल बाद ही जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। उनका सारा जो राजपाट था वो सब नष्ट कर दिया, उनको मार दिया, उनकी सेना को मार दिया, उनकी जो रानियां थी सबको ले गए वो वहां पे गजनी में, बुखारा में। तो इस तरीके से कोई भी, मुझे लगता नहीं कि महाभारत का जो लेसन होने चाहिए थे वो हमने पढ़े हैं। अगला प्रश्न श्रुति के लिए है। So starting from family feud, there were several economic, political reasons that led to the Great War of Mahabharata. Why do you think women played important role in this Great War? तो जैसे कि मैंने बताया कि महायुद्ध जो महाभारत में महर्षि व्यास ने जो युद्ध लिखा है भीष्म पर्व से लेके सुक्तिका पर्व तक, वो पूरा मेन का डिस्क्रिप्शन है। इट ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन, देयर एक्शंस, देयर डिसीजंस, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो स्त्री पर्व में आता है। तो वहीं पे हमें समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंस है विमेन का एक वॉर के इसमें। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि during Mahabharata time, women may not have fought physical war, but they fought mental war. They suffered, and after all, in war, it's women who suffers. So, वैसे political, economic aspect से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो war का consequence होता है वो women पे ही होता है। और हम वैसे देखा जाए तो एक मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से एक बात करना चाहूंगी कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, ये चीज हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं। बट वो टाइम पे द्रौपदी सिर्फ पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि वो साम्राज्ञी थी। वो इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी थी, जिस राज्य में राजसूय यज्ञ किया गया। राजसूय यज्ञ का मतलब ही ये होता है एम्पायरशिप। तो इसका मतलब है कि द्रौपदी वो टाइम पे महारानी थी, और अगर किसी महारानी का वस्त्रहरण होता है तो वो वस्त्रहरण सिर्फ वो स्त्री का नहीं होता है, वो पूरे राज्य का होता है। तो वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि वो सिर्फ हम कौरव पांडव सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं लड़े, बल्कि पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए लड़े थे। और हम वैसे भी हम देखा जाए तो पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ का राज्य था वो बहुत मेहनत से खड़ा किया था, विदाउट एनी बैकग्राउंड। वो पूरा खांडव वन था जिसको जला के उन्होंने इंद्रप्रस्थ प्रस्थापित किया था। और इंद्रप्रस्थ प्रस्थापित करने के बाद उन्होंने उसको एक राजसूय यज्ञ तक वो लेके गए थे कि जहाँ पे उनकी एम्पायरशिप प्रस्थापित की गई। और वो उसके सारे रीजन के पीछे द्रौपदी थी, क्योंकि ये सब उन्होंने तभी किया जब उनकी द्रौपदी के साथ शादी हो गई। तो द्रौपदी ही इंद्रप्रस्थ की पावर है, और वो जब उस पे अन्याय हुआ तो उसके लिए पूरा भारतवर्ष लड़ पड़ा। और हम वैसे देखें तो पांडवों की सेना में जो पांचाल का जो राज्य था उसका बहुत बड़ा बल था, और वो पांचाल जो था वो द्रौपदी का महका था। तो मोस्ट ऑफ द पावर जो थी वो पांचाल से आई थी पांडवों के पास। और हम महाभारत के युद्ध में देखा भी जाए तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के सेना की ओर से सेनापति कोई भी पांडव नहीं था, अर्जुन नहीं था या भीम नहीं था। उसके सेनापति थे धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न ये द्रौपदी के ट्विन ब्रदर है, और जो एक ही यज्ञ से दोनों भाई बहन आए थे। तो इसका मतलब है कि वो इफ वी लुक एट धृष्टद्युम्न, इट्स
male power of if he Drishtadumna is male counterpart of Draupadi. दोनों एक ही साथ आए थे, एक ही अग्नि से आए थे, तो ये बात भी द्रौपदी का महत्व प्रस्तापित करती है। तो मैंने आई थिंक मैंने ये मेरे बुक में भी कहा है कि अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध एक बुद्धिबल का पट माना जाए तो उसमें कृष्ण था राजा और द्रौपदी थी रानी। रानी के पास बहुत पावर होती है, रानी बुद्धिबल के पट में रानी कितने भी घर किसी भी और चल सकती है, तो वो जो पावर थी वो द्रौपदी की थी। So it was Vasudev Krishna who brought all the great warriors of Bharata together to fight the evil forces like Duryodhan and to establish dharma. So do you think India in medieval era lacked that kind of military scene like Chanakya or Krishna who can probably unite the whole of India to fight foreign invasions? हाँ, तो हमारी जो त्रासदी रही है, जो ट्रेजेडी रही है, वो यही है कि जैसे फिलोसफर महाभारत के टाइम पे कृष्णा थे और फिर चाणक्य आए, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने कोई प्रोड्यूस नहीं किया उस टाइप का फिलोसफर जो कि पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांध सके या गाइड कर सके, एक स्पिरिचुअल या गाइडेंस दे सके हमारे राजाओं को कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये बार बार अटैक हो रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो इस तरीके से कोई भी महापुरुष जो है वो समय पैदा नहीं हुआ जो कि गाइड कर पाए। तो सब लोग अपना अलग अलग लड़ रहे थे, अपना अलग अलग जो है वो सब लोग जैसे भी टैकल कर सकते थे वो कर रहे थे वो। तो जो चाणक्य ने बोला और मिडिवल एरा में यही हुआ कि जो कृष्ण की जो या महाभारत की जो लर्निंग्स थी, जो लेसन थे और जो चाणक्य ने बोला वो सब हमें कुछ भी याद नहीं रहा वो। तो प्रोबेबली ये था कि हम लोग इतिहास में शायद हमारी बहुत रुचि नहीं थी उस समय राजाओं की या उनके सेनापतियों में कि पहले क्या हुआ, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, उसकी क्या लेसन्स हैं, क्या लेसन्स लर्नड हैं। तो वो कोई भी जो है उसको अपने जीवन में जो है वो अमल नहीं कर पाया उनका। तो उसमें बहुत सारी जो वो है, जैसे एक था महाभारत में जो एक मेन एक और जो थी कि वहां पे क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन था कि पहले जैसे सेनापति थे भीष्म, उसके बाद हुए द्रोण, उसके बाद कर्ण। तो एक क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन था कि अब ये अगर मर गए तो उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा। जबकि मिडिवल इरा में क्या होता था कि अगर राजा मर गया तो समझ लीजिए सेना जो है जीत रही हो, लेकिन अगर राजा की आंख में तीर लग गया या कहीं पे तीर लग गया कंधे पे और वो गिर पड़ा तो पूरी सेना की सेना अचानक छोड़ के भाग जाती थी। कोई भी ऐसा नहीं था सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कि अगर वो राजा मर गया है तो मैं उसके बाद राजा बनूंगा, सैनिकों को उसकी बात सुननी है। तो एक ये बहुत बड़ा लैकुने था हमारे उसमें कि अगर राजा गया तो सडनली सब कुछ बिखर गया। तो बहुत सारे जो आपने सुना होगा कि जैसे हेमू थे जो अकबर के से लड़ रहे थे, उनकी वो अच्छे खासे जीत रहे थे, वो अचानक उनकी आंख में तीर लगा और वो गिर पड़े और वो सडनली सारी हिंदू सेना जो है वो छोड़ के भाग गई वो। तो इस तरीके से बहुत सारे वो हुए हैं वाक्य जिसमें जो है कि हम जीत रहे थे लेकिन क्योंकि हमारे राजा के बाद कौन लीडर है वो पता नहीं है वो, तो उस चक्कर में हम वो हार गए। तो इसी तरीके से जैसे मैंने भी बोला कि जो और ये जो एक था कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, हम कभी भी एनिमी की टेरिटरी में जाके हम नहीं लड़ पाए, हमारी सारी लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई। तो ये सब जो अगर कोई गाइड करता हमें ये कि आपको जो है ये ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि महमूद गजनवी जो है वो 17 बार आया, मोहम्मद गौरी 10-12 बार आया, फिर अगर 1000 साल बाद आगे आए तो अहमद शाह अब्दाली भी 8-9 बार आया। उतने उसके बीच में जो है वो तैमूर आया, नादिर शाह आया, मुगल्स आए, कितने सारे इन्वेडर्स आए, वो हमेशा आके हमको जो है हरा के खजाना लूट के चले जाते थे। हमारी कोई भी ऐसी वो नहीं हुआ कि हम इससे कुछ सीखें। एक ही तरीके से हम लड़ते रहे, वही हाथियों पे लड़ते रहे हम। वो हाथी आते थे, हम हाथियों पे लेके आते थे, उनके पास कैवलरी होती थी, घोड़े होते थे बढ़िया वाले उनके, और वो हमें हाथी को मार देते थे वो, और फिर जो है फिर वो सेम रिजल्ट होता था कभी भी। तो हम हमेशा एक ही फॉर्मेशन में लड़ते रहे और उन लोगों ने भी कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं करी क्योंकि वो जानते थे कि हम इस फॉर्मेशन में लड़ रहे हैं तो हम हमेशा जीतेंगे। इनफैक्ट आप देखिए, आप विजयनगर जो ये जिस टाइम पे 1000 में, आज से करीब 1000 साल पहले महमूद गजनवी हम पे अटैक करा था, उसके बाद में 1565 में विजयनगर में जो कृष्णदेव रॉय थे और रामा राय थे, वो तब भी वो 500-600 साल बाद वो हाथी पे लड़ रहे थे।
जो बहामनी सुल्तान थे वो हैदराबाद में और कर्नाटका में, और जो साउथ महाराष्ट्र है उस जो रीजन था वो, उस रीजन में विजयनगर जो है पोर्तुगीज से घोड़े इंपोर्ट करता था, तोपें इंपोर्ट करी, बट समहाउ उनको यूज नहीं किया गया। वो सिर्फ तलवारें, धनुष्वाण और जो है वो हाथी पे ही खेलते रहे वो। तो इस तरीके से एक बड़ा एक वो रहा कि इतना हम लड़ने के बाद भी, इतना अटैक होने के बाद भी हम कुछ सीख नहीं पाए। और एक यही मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वो मिडिवल एरा में वो खत्म हो गया, प्रेजेंट कंडीशन में आज भी वही चल रहा है। जबकि जो टेररिस्ट रहते हैं वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आते हैं, हम पे अटैक करते हैं और फिर वो आराम से अब निकल भी जाते हैं। वो हमें पता ही नहीं लगता कि वो कि कितने उनके जो है टेररिस्ट आए हमारे पास। जैसे बॉम्बे में हुआ 2008 में, तो कितने सैनिक आए वही हमें 2-3 दिन तक नहीं पता लग पाया। तो वो अभी भी ऐसे ही हो रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि हम कोई लेसन सीख पाए हैं, और ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली शायद होता भी रहेगा। आई थिंक अमित जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इतिहास इसके लिए सीखते हैं कि इतिहास में हमारे से जो अच्छी चीजें हैं वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, या फिर हमारी जो गलती हुई थी उसको हम सुधर पाए। अगर वो दोनों हमने नहीं किया तो इतिहास का कोई महत्व नहीं है। हमारे पास कितना अच्छा प्राचीन इतिहास है जिसको हम पढ़ के, उसको समझ के हम जीवन अच्छी तरह से यशस्वी बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम वो इतिहास का जो महत्व है हमने उससे सीखा नहीं, कहीं पे हमने उसको अपनाया नहीं, और हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम किस तरह से होता है। Yeah. So one more question. ऐसा कहा गया है कि महाभारत वार के बाद द्वापर युग का अंत हो गया था, एंड दैट मीन्स मेनी डायनेस्टीज गॉट डेसिमेटेड, मतलब बहुत सारे डायनेस्टी का खात्मा हो गया था और बहुत सारे वॉरियर क्लान खत्म हो गए थे, बहुत कम लोग बचे थे महाभारत के बाद। तो एक तरह से देखा जाए तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था जो जरूरी था, जैसा महाभारत में बताया गया। बट इसका नुकसान ये हुआ कि इंडिया का जो पावर था वो इंटरनली वीक हो गया। और क्यों हुआ कि फैमिली के बीच में लड़ाई थी, तो एक फैमिली की लड़ाई इतना बड़ा हो गया कि पूरा भारत के सारे महारथी आपस में भिड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही हमारे मिडिवल टाइम में हुआ था कि लोग मंडला कंसेप्ट में लड़ रहे थे कि हम अपना साम्राज्य बड़ा करेंगे, हम अपना साम्राज्य बड़ा करेंगे, और इस चक्कर में भारत का नुकसान कर बैठे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आप देखेंगे कि जब महमूद गजनवी ने अटैक किया या फिर जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, इन दोनों के बीच में करीब करीब 200 साल का अंतर है। उसने 1000 CE में किया, इसने 1192, करीब करीब 180-190 साल का दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में क्यों अटैक नहीं हुआ इन 200 सालों में? या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में अटैक किया और उसके बाद महमूद गजनवी ने 1000 में अटैक किया, इसमें भी 300 साल का अंतर है इसमें। ये 300 साल और ये 200 साल में क्यों नहीं अटैक हुए? जबकि उतने इन 500 सालों में पूरा मध्य एशिया और पूरा पश्चिम एशिया और आधा यूरोप, अफ्रीका, सबके सब इस्लामिक हो गए। आपको पता होगा कि इस टाइम में स्पेन भी पूरा फुल्ली इस्लामिक था। वो तो बाद में 14वीं सेंचुरी में जाके उन्होंने रिकॉन्क्वेस्ट जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्रिश्चियंस ने जो है वापस अपना स्पेन और पोर्तुगीज, जिसको आइबेरियन पेनिसुला बोलते हैं, वो वापस लिया। अदरवाइज पूरा नॉर्थ अफ्रीका या मिडिल अफ्रीका, वेस्ट एशिया, नॉर्थ और सेंट्रल एशिया सब कुछ इस्लामिक हो गया सिवाय इंडिया के। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस टाइम पे इन 500 सालों में हमारा जो बहुत जो पावर थी वो सेंट्रलाइज थी, कंट्री एक सूत्र में बंधा हुआ था। तो उस समय गुर्जर प्रतिहार थे महमूद गजनवी के टाइम पे, जिन्होंने इस आक्रमण को रोके रखा। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बीच में जो 200 साल थे वो गुर्जर प्रतिहार थे। तो वो पूरा नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे उनका राज्य था, और उन्होंने किसी भी आक्रमण को सक्षमता से उन्होंने उसको रिपेल किया उसको। लेकिन 1150 आते थे, 1160 आते आते वो गुर्जर प्रतिहार था, एक राष्ट्रकूटा थे जो कि डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में थे, और ईस्ट इंडिया में थे पाला डायनेस्टी। तो ये तीनों डायनेस्टी जो है आपस में लड़ती रहती थी, और उनको चाहिए था सबको फोकस था उनको कन्नौज। कन्नौज जो था वो कैपिटल था इंडिया का और रिचेस्ट सिटी था इंडिया में। वहां के मंदिरों में बिल्कुल जो है बेशुमार दौलत थी वहां पे। तो उसके लिए जो है वो सब तीनों लोग लड़ते रहते थे आपस में ही। तो इस लड़ाई में तीनों जो डायनेस्टीज थी इनका डिक्लाइन हो गया।
जैसे ही इनका राष्ट्रकूटा का सॉरी गुर्जर प्रतिहार का डिक्लाइन हुआ, वैसे ही मोहम्मद गौरी को लगा कि ये अच्छा टाइम है इस पे अटैक करने का और इसको इंडिया पे कब्जा करने के लिए। तो उन्होंने वही किया उन्होंने। और क्योंकि जब जब कहने का मतलब ये कि जब जब सेंट्रलाइज रहे, हम पावरफुल रहे, हमारा जब तक हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। जैसे ही हमारा फ्रेगमेंटेशन हुआ, हम बिखर गए। ऐसा शायद वो पर्सिया के एंड में, पतन में भी यही हाथ था कि बेनिंटाइन एंड पर्सिया आपस में लड़ते रहे और अरबों को फायदा हो गया इसकी वजह से, और वो बिल्कुल, बिल्कुल। उनका कॉन्क्वेस्ट इजीली हो गया। सो अब हम समापन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न रहेगा आप दोनों से ही कि आपका फ्यूचर वर्क, अभी आप क्या शोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लाने वाले हैं? अभी मैंने जो है अभी पिछले 2-3 महीने में मैंने अपनी बुक का जो है हिंदी रूपांतरण भी किया है मैंने। तो इसका मेन रूपांतरण हमारी पत्नी स्वाति अग्रवाल ने किया है। तो ये बुक भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका नाम वही है, स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प सोर्ड्स। तो ये मार्केट में अभी अवेलेबल है ये। तो ये अभी मैंने जनवरी में लॉन्च किया है, ये 2 महीने पहले ही। और इसके बाद जो है मेरी एक नई पुस्तक आ रही है, ए नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो जितनी भी हमारे जो ये स्टोरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि कोहिनूर की थी, तो कोहिनूर कैसे हमारे पास से जो है वो छीना गया हमसे। तो पहले वो पर्शिया चला गया, हुमायूं उसको पर्शिया लेके चला गया, फिर नादिर शाह फिर इंडिया आया, और फिर जो है वो नादिर शाह उसको पर्शिया लेके गया, और फिर कैसे महाराजा रणजीत सिंह उसको वापस लेके आए, और उसके बाद फिर जो है उसको अंग्रेज ले गए। तो एक ये कोहिनूर की स्टोरी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। फिर विजयनगर का जो अभी मैंने बातचीत करी आपसे कि क्यों जो है विजयनगर जो है वो वही इतना प्रोग्रेसिव होने के बाद भी, तो जो ये हम्पी शहर है ये नॉर्थ कर्नाटका में, यहाँ पे कहते हैं कि खुलेआम सड़क पे जो है हीरे जवाहरात बिकते थे वहां पे। तो उसका जो है वो पतन हो गया। वो उसका एक जो 1565 में आपने सुना होगा बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, उसमें जहाँ पे ये जितने भी बहामनी सुल्तान थे वो एक होके उन्होंने इनको हराया इसको। तो ये एक बुलवर्क था विजयनगर अंपायर, जिसने साउथ इंडिया को रोके रखा उससे इस्लामिक इन्वेजन से। बट उनको बिखरने के बाद वो भी पूरा जो है वो खत्म हो गया वो। एक ये कहानी है, प्लस तीसरी कहानी है मेरी लच्छित बरफुकन की। एक असम में एक इन्वेडर एक सेनापति थे अहोम राज्य में, लच्छित बरफुकन। तो उन्होंने औरंगजेब की सेना को हराया। औरंगजेब की सेना ने बार बार अटैक किया उनपे, लेकिन कैसे जो है स्ट्रेटेजिकली उन्होंने जो है वो औरंगजेब की सेना को हराया, ये एक जानने लायक की कथा है, गाथा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं इंडिया में कैसे किया। तो इनको हराने के लिए जो जो उसके लिए एक दिमाग चाहिए होता था, उसके लिए सैनिक नहीं चाहिए होते थे, एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती थी। तो वहां असम में आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो कैसे उन्होंने उसको यूज करते हुए, टेरेन को यूज करते हुए, ज्योग्राफी को यूज करते हुए कैसे उसको मुगलों की सेना को हराया। एक भी सैनिक वो बच नहीं पाया वहां पे। उनके पास जो सेनापति थे मुगलों के, जो राम सिंह थे, अनफॉर्चुनेटली जो है वो समहाउ औरंगजेब के दिमाग में क्या था, मुझे उनको पनिशमेंट करने के लिए राम सिंह जो थे, आपको याद होगा कि जब शिवाजी ने जो है कैद कर लिया था औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के जिले में, आगरा के किले में, तो वो राम सिंह ने हेल्प करी थी उनको शिवाजी को भागने में। तो एज ए पनिशमेंट जो है वो औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा लच्छित बरफुकन से लड़ने के लिए गुवाहाटी। तो ये लोग गुवाहाटी गए थे इतना 1,500-2,000 किलोमीटर की यात्रा करके। पर क्योंकि अभी दोनों जने हिंदू थे, सेनापति लच्छित बरफुकन भी हिंदू, राम सिंह भी हिंदू, तो वो जो मारकाट होती थी जो बिटवीन इस्लामिक एंड हिंदू जो होता था, वो सब इसमें एब्सेंट था वो। तो ये मैंने ये डिफरेंस को उसको उजागर किया है इसमें। और एक स्टोरी है जो खिलाफत की है, कैसे खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और कैसे वो पार्टीशन का कारण बना। वो जो खिलाफत जो टर्की में हुआ था, जो खलीफा को अंग्रेजों ने बाहर भेज दिया था, खत्म किया था, फिर वो जो कमल अतातुर्क आए थे उन्होंने एक्चुअली खत्म किया। तो ये सब कहानियां जो है मैंने खिलाफत की, पार्टीशन में हुई, और उसका अभी भी क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे हम जो है अभी भी एट वॉर हैं, अभी भी जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जितने भी जो इस्लामिक इन्वेजन अभी भी जो हो रहे हैं, वो सब का वो कैसे खिलाफत से लिंक्ड है, वो उसमें उस किताब में मैंने वो उसका जिक्र किया है। तो होपफुली किताब जो है अप्रैल के मंथ में लॉन्च होगी। वो आशा है कि वो किताब सबको पसंद आएगी। वो आई एम थिंकिंग ओवर इट। मेरा बीच में लॉकडाउन के टाइम में
वर्क होम ये पूरा मैनेज करना, और मेरा बेटा 4 साल का है, अभी 4.5 साल का है, तो मैंने ये सोचा था कि लॉकडाउन का टाइम मैं बच्चे के लिए इन्वेस्ट करूंगी, बिकॉज दिस इज माय गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी विथ हिम, टू स्पेंड टाइम विथ हिम विदाउट इम्पैक्टिंग माय करियर। तो मैंने वो आई थिंक मैंने वो टाइम मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और हम बोलते हैं कि लॉकडाउन एक चैलेंज है, बट मैंने उसकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी जैसे देखा, और वो टाइम मैंने मेरे बच्चे के साथ बिताया। अभी वो भी 5 साल को अभी होने को आया है, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन राइटिंग माय नेक्स्ट बुक। तो वो रामायण के ऊपर है, और रामायण को इट्स सेम, द concept is telling story of Ramayan from female perspective. So in that you will hear voices of many female characters, very opposite female characters, and same story you would see from two different perspectives, and I hope it would be very interesting. Yeah, so it looks interesting, and yeah, we as a channel waiting for both the publication to come, so to discuss with our audience. Yeah, so thank you, Amit and Shruti, for joining with us and discussing in detail and drawing parallel between ancient India and the medieval India. I hope the present India learns the lesson and be prepared for any eventuality. Yes. Thank you so much. I think it Thank you so was much. Yes, thank you. to bring two times together, और ये पूरा डिस्कशन हम जैसे कि मैंने बताया हमें यही सिखाता है कि हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए ताकि हम और प्रगति कर सके, और जो हमारे इतिहास में गलती हुई हो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। Yeah, thank you. Namaste. थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Namaste. Please don't forget to like, comment, and subscribe.